to the other person to find out what is bothering him and then try and arrive at a solution. अच्छा solution क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना, this one alternative is कि नहीं reforms रहेंगे जैसे हैं. Second alternative is reforms will be repealed. Now these are two extreme positions. These are not solutions. Neither this alternative a solution, neither is that alternative a solution. तो जैसे एक किताब है स्टीफन कोवी की, उसने लिखा है थर्ड ऑल्टरनेटिव. It is a third alternative is a solution out here. And third alternative is not always something is a compromise. It is not that a middle path only. A third alternative is sometimes you ask something different where both the objectives are met. The objectives of the government and the objectives of the farmer both are met. That is where the answer to this has to lie. And I can give you some small suggestions here. आप जो बातें कह दी मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा. बहुत अच्छे सजेशंस आ चुके हैं. I am not going to repeat those. I am just going to add a little bit. Number one, let us go act by act in this. I would say the Essential Commodities Act, the stop limit being removed. Now, with this should be taken up first of all. No farmer will have any grievance on this. I can say this. बहुत आसानी से the government can say कि भाई इसमें आपका क्या grievance है बताइए. उनका इसमें कोई grievance नहीं हो सकता because ये stocking limit scarcity condition के लिए EC Act में डाली गई थी. And if at all, अब अगर इसमें कोई चीज हो सकती है, a negative point against this, if anybody can say, it is this that the traders can stock up commodities and push up the market price and then release the commodity in the market to gain from the price. So this is for the trader and the consumer. It affects the consumer as such, but does not affect the farmer directly. Farmers themselves get an opportunity now to store their produce. Of course, there are issues in that. If a farmer needs warehouses, it needs storage facilities. तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है 1 लाख करोड़ की जो स्टोरेज फैसिलिटीज के बारे में है, which they can take advantage of. And we need a scheme like the warehouse in receipt as a negotiable instrument. उसको डालना पड़ेगा so that farmer अगर स्टोर करता है अपना प्रोड्यूस तो उसको 3/4 बैंक से सीधे मिल जाए पैसा. Otherwise he cannot avoid distress sale. So ये तो बात आ सकती है, but by and large EC Act को जो बात कही गई है, if the farmer will agree on this, he doesn't have any great issues on this, is my feeling. Then we can come to the contract farming thing. वो भी एक तरीके से कोई मजबूरी नहीं कही कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है. I mean, they have enabled contract farming, and this was there for the last 10-15 years. ये बात चल रही थी that we only enabled that this is where how you can do contract farming. Now it doesn't make compulsorily कि आपको contract farming करना ही करना है. It doesn't say to farmers that you have to do it. Of course, इसमें there are some things which have to be brought in. नंबर 1 जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात हो रही है, अब देश है कि एसडीएम वाला मेथड ठीक नहीं है, कोर्ट की बात है. ऐसे कोर्ट की बात तो एग्री कर लेना चाहिए, पर हम तो समझते हैं कोर्ट वाली बात इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, बिकॉज यू एंड आई बोथ नो दैट एनीथिंग विच गोज टू द सिविल कोर्ट इज नॉट लाइकली टू बी डिसाइडेड इन अ हरी. इट विल टेक 5 years to 10 years to decide. एनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अभी जो सिविल कोर्ट में चला जाता है, इट टेक्स 10 years फॉर डिसीजन. तो फार्मर्स वाला भी 10 साल लग जाएगा. The better option is what was suggested by your convener earlier on is we can say we'll have a separate regulatory mechanism for this, which will provide a level playing field to the farmer as well as that दोनों की बात सुन के वो 1 महीने में 3 महीने में अपना फैसला सुना देगा. तो उससे फार्मर्स को ये हो जाएगा कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा बाय द कॉर्पोरेट पीपल. बिकॉज व्हाट आर दे सेइंग, कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है. एक बात जो कही जा रही है, कई और लोग भी कह रहे हैं कि साहब इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट घुस जाएंगे और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर लेंगे. So there has to be a regulatory mechanism to give that level playing field to the farmer. This apart, there has to be a great impetus to developing farmer producer companies or farmer producer organizations. मैं आपको एक बात बताऊं, फार्मर्स की बात, ये सोच भी बहुत गलत नहीं है अगर आप सोचिए उस तरीके से. जो उत्तर प्रदेश में एवरेज लैंड होल्डिंग है 0.8 हेक्टेयर, बिहार में है 0.4 हेक्टेयर, पंजाब में है 3 हेक्टेयर. अब 0.8 हेक्टेयर का ये मान लीजिए एग्जांपल ले लें, या ओवरऑल इंडिया का एवरेज ले लें 1 point something हेक्टेयर. उस फार्मर की वेयर इज द कॉम्पिटेंस और द मार्केटिंग स्ट्रेंथ डज ही हैव टू डू कलेक्टिव बार्गेनिंग विद अ बिग कॉर्पोरेट हाउस. टुडे फॉर टेक एन एग्जांपल, इफ पेप्सिको कंपनी कम्स एंड सेज कि साहब आपको आलू उगाना है, उत्तर प्रदेश के फार्मर से कहता है, और मैं आपको ये वैरायटी दूंगा और ये वैरायटी आप उगाइए, मैं आपसे खरीदूंगा. नाउ एनी नेगोशिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट. Negotiate the right price, negotiate the right terms about quality. Does that small farmer have the strength to negotiate on equal terms with a corporate house like PepsiCo, which has a huge team of MBAs from Ahmedabad and legal experts and financial experts and everybody? कहीं बराबरी है ही नहीं आर्ग्यू करने के लिए. तो वो बराबरी लानी पड़ेगी. वो बराबरी आप कैसे लाएंगे? Through aggregation of farmers into vibrant and viable farmer producer companies.
आज जो एफपीओ बन रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, बट मेरा अपना जो अनुभव है मैंने पूछा है, ये खाली पेपर में है। कोई एफपीओ 2-4 को छोड़ के कहीं एक्टिव नहीं है। 2-4 एक्टिव है, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी कहानियां रही हैं 2-4 की, वेरी गुड सक्सेस स्टोरीज, बट बाय एंड लार्ज एफपीओ आर नॉट एक्टिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल से, शुड से कि हम एक स्कीम लाएंगे कि हम फॉर एम्प्लॉय प्रोड्यूसर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे जिसको हम सीड कैपिटल देंगे थ्रू दैट एंड पुट इन एंड गिव कंप्लीट गाइडेंस इन हैंड होल्डिंग एंड फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। ये एफपीओस खड़े हो जाएंगे। जब एफपीओस खड़े हो जाएंगे, देन एफपीओस विल हैव लीगल टीम, विल हैव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टीम, विल हैव फाइनेंस पीपल, will have marketing people, will have technical people, then that FPO will be in a position to parlay on equal terms with the corporate sector. ये बराबरी का जब प्रचार आ जाएगा तो ये एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं आएगी, कहीं भी नहीं आएगी। और दूसरा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना दीजिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इवन अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात आ रही है, इट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन। नोवेयर इज द गवर्नमेंट सेइंग कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही करनी है, आपको सूट करे तो करे, आपको ना सूट करे तो ना करो भाई, डोंट डू इट। That's all. So I think this the farmers can accept. अभी जो रिसेंट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन थोड़ा और बताइए। किसका? अभी जो एजुकेशन चल रहा है उसको हाँ लाइटन करने के लिए मैं वही बता रहा हूँ। These are the points which can be used in the debate. And the third point is, बाकी लोग अपने हिसाब से रखेंगे। हाँ आप अपनी बात बाद में रख लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ, these are the points which can be used in the debate to convince them. मैंने बताया ना कि EC Act वाले पे तो कोई इंसिस्टेंस नहीं होगा, that can easily be done away with. ओनली प्रॉब्लम विल कम विद दैट मंडी हटाने वाला पॉइंट कि मंडी के अलावा यू कैन सेल एनीवेयर। दिस इज वेयर द मेन बॉटलनेक इज कमिंग। द फार्मर्स आर सेइंग कि मंडी सिस्टम हमारा एबॉलिश हो रहा है। तो मंडी सिस्टम एबॉलिश होने के लिए तो ये कह देना पड़ेगा कि मंडी सिस्टम एबॉलिश नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट द मंडी सिस्टम विल बी स्ट्रेंथन एंड इट शुड बी स्ट्रेंथन ऑल्सो। लेट मी टेल यू दिस, द मंडी गिव्स एन ऑल्टरनेटिव प्राइस डिस्कवरी। Okay, there may be problems with the mandi, there may be cartelization, there may be corruption. There are ways of handling that administratively or in an executive manner. That does not mean you do away with it. So, but mandi system will be an alternative price discovery where the farmer also knows. Therefore, when he negotiates with someone who comes to his farm gate to buy his produce from him, he knows what is the price which is prevalent in the mandi or what is the price prevalent in all the other mandis. Then he will be in a position to bargain better with them. आज अगर मंडी सिस्टम ही नहीं रह जाएगा तो फिर वो उससे बार्गेन नहीं कर पाएगा। और अगर फार्म गेट पे 2.5% कम या 3% कम कमीशन पे परचेज अलाउ हो जाएगी तो यू टेक इट फ्रॉम मी, माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, मंडी डिजेनरेट हो जाएंगी, उनके पास फंड नहीं रह जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर टू ऑप्शंस, जैसा आपने कहा, जैसे माननीय मंत्री जी की मैंने बात भी सुनी थी, कृषि मंत्री की, कि वहां भी रूरल डेवलपमेंट सेस वाला 3% वो कह देंगे वहां भी लेना है आपको, इफ यू बाय आउटसाइड द मंडी ऑल्सो, टू इक्वलाइज द टू। सेकेंड इज, ये कहते हैं कि मंडी की आज जितनी इनकम आ रही है उतनी इनकम मेंटेन करने के लिए the government will provide from the budget some scheme for modernization of mandis or support of mandis so that mandis do not degenerate. So my thing is, ये कन्विंस कर देना पड़ेगा फार्मर को इस नेगोशिएशन में कि हम मंडी सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं करेंगे उसका। और रही बात एमएसपी की, एमएसपी को तो लीगल फ्रेमवर्क नहीं दिया जा सकता है, लेकिन नहीं कहा जा सकता है रिटन में कि हम ये तीनों जो लॉज हैं इनका कहीं भी एमएसपी को छूने का इरादा नहीं है और हम आपको पूरा इसको सपोर्ट देंगे। बनाए इसके जो इनकम सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स के लिए, उसमें हम 6,000 रुपए महीना दे रहे हैं किसान सम्मान निधि में, हम वी कैन इंक्रीज दैट बाय 2,000 रुपीज। मैं थिंक हम उसको 6 से 8,000 कर देंगे आपके सपोर्ट के लिए। बट एमएसपी की लीगल गारंटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू कैन नॉट बाय ऑन एमएसपी ऑल द प्रोडक्ट्स एंड एनी केस इट डज नॉट मीट एवरीबॉडीज नीड। जो 23 कमोडिटी है एमएसपी में, उसमें आलू, प्याज, ये सब चीजें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं। जहां असली दिक्कत आती है जब प्राइस गिरता है मार्केट में, उसमें ओनली सीरियल्स एंड ऑयल सीड्स एंड पल्सेस आर देयर इन 23 कमोडिटीज, जिसमें भी परचेज खाली व्हीट और पैडी में होता है, किसी और में होता ही नहीं है। नैफेड इंटरवीन करता है ऑयल सीड्स और पल्सेस में ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, नॉट बियॉन्ड दैट। सो दीज आर द थिंग्स आई वांट टू से कि ये चीजें पुट फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी, इस पे एग्रीमेंट होने का रास्ता निकल सकता है। मंडी को मेंटेन किया जाए, एमएसपी को हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, कैन बी गिवन एज अ गारंटी, लेकिन लीगल नहीं, बट गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इनफ है। And then modernization of mandi will be done. Then a regulatory body will be created for contract farming, which is separate from the SDM and DM mechanism. And then मैंने कहा जैसे farmer producer companies will be set up in a big way with support and financial support from the government. And EC Act वाले में तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत ही नहीं कुछ कहने की, उसको फार्मर को इफेक्ट ही नहीं करता। ओनली आप वेयर हाउसिंग के लिए उनको स्ट्रक्चर दे दीजिए, स्टोरेज के लिए इंसेंटिव स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसमें वेयर हाउस बनाए, स्टोरेज बनाए, वो करें। दीज आर माय पॉइंट्स आई वांट टू सबमिट। थैंक यू।